So I'll just take JE advanced strategy. Clear? Now, first and the most important point about, I'll talk about physics only. So as I told you all that the important chapters will be made into blocks. So if I tell you that there are some important blocks, the first block which we need to prepare, which comprises of 40% of your portion for physics, is electromagnetism. Second is modern physics, it's very scoring. And third one is optics. So if you do this block, approximately your 40 to 45% of the portion of your examination part will be done. ठीक है ना? One second, just wait. I'm just putting the battery on charge over here because it's low battery. Just wait. So this is the first block every year. Can you hear me now? Hello? Yes, sir? Yes, Hello? sir. Okay, fine. So first block every year comprises of 40% of your part portion. So this is do or die, like ये तो होना ही चाहिए. This is our electricity and magnetism का book DC पांडे का, and this is light and modern physics. तो यहाँ पर you are doing two books of DC Pandey. You all know which books, huh? Second block which is there, which is block 2. It comprises of your mechanics, and mechanics mainly book 2, and then properties of matter, that is book 2 only, na? Okay. This we have comprised as block number 2, and the last block which is there is block 3, which is your rest of chapters, that is oscillation and waves, heat and thermo, and chapters such as gravitation. So you have to do it in this sequence only. ये सबसे ज्यादा पक्का करना है आपको, ये वाला ब्लॉक. So you'll be able to crack 40% of the questions from block 1. तो मतलब इससे क्या क्या करना है? What do you have to do? You have to do DC Pandey, level 1, level 2, everything. You can do last PYQs also. Okay, so PYQs you will get it. I have sent you on the website also, or you can take a book, you can order the book online. Or minimum you have to do 2018, 2019 and 2020 का questions. Minimum इतना तो करना ही पड़ेगा. Okay, similarly you have mechanics book 2 and properties of matter. This is your book 2 only. This also you do DC Pandey and PYQs. It depends on whatever time you have. Accordingly you can manipulate. यहाँ पर also you can do at least DC Pandey has to be done. ठीक है ना? So this is first about the physics portion or physics part.
which we need to prepare according to the block system. Hello. Yes. Now, secondly, I will talk about the daily schedule. So whenever we are preparing for JEE Advanced seriously, so at this stage we need to devote at least 12 hours a day. Okay, you can say that it is very much. You can give, if you don't want to give 12 hours, at least you can give 9 hours. 9 hours तो minimum आपको देना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा. Okay, so it will be divided into 3 sections again. I'll talk about maths. Maths को सबसे ज़्यादा देना है टाइम. ओके, फिर है केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका पार्ट कौन सा कमजोर है. सो इफ आई टेल यू दैट इट इज 4 hours ऑफ मैथमेटिक्स, 4 hours ऑफ केमिस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक एंड 2 hours एंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल, वट एवर यू कॉल फिजिकल इनऑर्गेनिक, एंड यहाँ पर यू नीड टू गिव 4 hours. दैट इज आई एम डिवाइडिंग इट इक्वली. अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ मजबूत है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ इजी है, तो यू नीड टू टॉगल अकॉर्डिंगली. So maths, chemistry and physics have to be done this way. So this is 12 hours. बाकी का टाइम जो है 12 घंटा वो आपका है. अब you can sleep for 8 hours, you can do, but जो भी आपको करना है, but ये मिनिमम आपको, अगर आपको 12 घंटा ज़्यादा लगता है तो आप इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो, बट इतना मिनिमम आपको टॉगलिंग स्टडीज करना ही पड़ेगा. Okay, generally people do maths and chemistry or chemistry and physics on one day. That will be a very hectic schedule. Experts always say that we need to toggle between studies. That maths किया सुबह में, फिर chemistry, फिर physics शाम में, या you keep on toggling so that you have the habit of toggling in the examination also. So that has to be done properly. Okay, and अभी क्या घर पे बैठे हैं तो डेली एक्सरसाइज इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर हाफ एन आवर और 1 hour. यू कैन गो फॉर अ वॉक. जो भी है, तो अपने आप को फिट रखना है, अपना ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है. ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस ओके एग्जामिनेशन. और एक चीज है कि लोग कहते हैं कि भाई हमने जेई मेन का, देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ. हम लोग जेई मेन स्कोर की बात करते हैं. नाउ लिसन टू मी. ओके, जेई मेन स्कोर अगर जिसका 120 से 160 आया है ना जेई मेन में, आई डोंट नो अबाउट व्हाट परसेंटाइल इज देयर, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 120 से 160 जिसका आया है, दे कैन हिट बाय प्रॉपर प्रैक्टिस इन द जेई एडवांस्ड, ओके, फ्रॉम 4000 to 9000 स्कोर इन योर एडवांस्ड. ये प्रैक्टिकल चीज है जो ग्राउंड रियलिटी है. अगर आपका 160 के ऊपर स्कोर आया है टू 225 or something like that, then you can score below, I can say 4000, and that will go on accordingly. तो हमको जो है ग्राउंड रियलिटी से प्रैक्टिकली जो एम बनाना है, वो प्रैक्टिकल एम बनाना है. ऐसे नहीं है कि आई विल स्टैंड फर्स्ट इन एआईआर, तो दैट इज एन इम्प्रैक्टिकल स्कोर व्हिच इज देयर. तो आपका जैसे स्कोर है, जहां पर भी आप बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सेट अप अ गोल फ्रॉम 4000 to 9000 और बिलो 4000. यू नीड टू फॉल इन दैट कैटेगरी, एंड उसके हिसाब से मेहनत भी करनी है. ओके, बिलो 120 अगर आपका स्कोर है या कुछ है, तो आई विल रिकमेंड कि भाई आप बिट सैट के ऊपर या दूसरी चीज के ऊपर स्कोर करो, बिकॉज ये चीज जनरली हिट नहीं करेगी. ओके, दिस इज टोटल मार्क्स आउट ऑफ टॉक अबाउट 300. ठीक है, तो ये एक बात हो गई पहले डेली स्केड्यूल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच की. बाकी हम लोग थोड़ा एनालिसिस देखते हैं
कि भाई आप लोग कहेंगे भाई जी एडवांस इतना डिफिकल्ट है, क्या है, कैसे स्कोर करना है सर, वी शुड लीव और नॉट। तो हम लोग 2016 में देखते हैं, 2016 में जिन लोगों ने 32% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट किया था ना और करेक्ट आया था उनको, देयर स्कोर वाज अंडर 10,000। ओनली 32% ऑफ द पेपर बाय was correct. In 2017 it was 48% because chemistry was comparatively very easy. Third, 2018 it is 35% of the paper. Okay, generally in 19 and 20 also the score goes up to less than 40%. I can say that in 2019 and 2020 it goes less than, okay, less than 40%, or I'll say करेक्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया। तो आपको पूरा करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 40% ऑफ द पेपर भी अटेम्प्ट किया तो आपका स्कोर अंडर 10,000 आ जाएगा, और मे बी अगर और थोड़ा 2-3% 4% ज्यादा अटेम्प्ट किया तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो यू कैन फॉल इनटू द IIT स्टफ। मेनी पीपल विल लीव प्रैक्टिसिंग जेई एडवांस थिंकिंग दैट इट इज डिफिकल्ट, थिंकिंग दैट स्ट्रैटेजी क्या बनाओ। किन लोगों को अच्छी स्ट्रैटेजी पता नहीं रहती है, बहुत सारी बुक्स कौन पढ़ेगा, तो दे लीव द रेस। बहुत सारे लोग रेस छोड़ देते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे ही जाके देकर आते हैं। तो अगर आप थोड़ी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बराबर सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे परसेंटेज बढ़ जाएगी और आपका रैंक भी बूस्ट हो जाएगा। ये उसका रियल स्ट्रैटेजी है जो ओके एक्सपर्ट्स लोगों ने ये दिया है और इज डॉक्यूमेंटेड आल्सो। नेक्स्ट इज नाउ इन द एग्जाम हाउ टू अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हम लोग जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, देखो मेरी बात सुनो, इट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ जेई एडवांस इज नो स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। मतलब यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इनटू 3 स्लॉट्स। स्लॉट 1 में you will attempt all easy questions। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के निकालो पीसीएम में से और उसको अटेम्प्ट कर डालो। ओके, बिकॉज एवरीथिंग विल कैरी द सेम मार्क्स। अब यहाँ पर और मैंने स्ट्रैटेजी लिखी है कि 40% ऑफ द पेपर इज वेरी वेरी इजी ऑल्सो, और 30% ऑफ द पेपर इज वेरी इजी। इज बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन मतलब दे विल बी ऑफ जेई मेन लेवल। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको चुनना है, ओके, ये आपको सेलेक्ट करना है और उसको अटेम्प्ट कर लेना है। once you attempt this you will be full of confidence कि आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स टोटल पीसीएम में अटेम्प्ट हो चुका है। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन जो भी है सबको निकालो पकड़ के एंड देन अटेम्प्ट कर लो उसको। फिर बाकी जो बचे 70% विल बी टोटली लॉजिकल, इट विल बी IQ बेस्ड। फैक्ट बेस्ड बहुत कम होते हैं जनरली, एंड it will be okay explanation based. I can say it is long questions where you need to interpret the data. same questions आने वाले नहीं है, it will be based on your IQ के कैसे आप relate करते हो कॉन्सेप्ट को। ये पूरा सिनेरियो आपको दिया रहेगा,
रोटेशनल मोशन का एक पूरा सिनेरियो आपको दिया गया है, आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करना है, आपको टॉर्क का इस्तेमाल करना है, एंगुलर मोमेंटम इस्तेमाल करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ नेट इज आई अल्फा, जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो आपको वो सब क्वेश्चंस में मिलेंगे, और जितना आप अटेम्प्ट कर पाते हो दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कैचिंग एबिलिटी, योर थिंकिंग एबिलिटी, योर साइकोलॉजिकल बैलेंस, आपकी किस्मत अच्छी होना चाहिए, तो दैट विल ऑल बी कैटेगराइज्ड एज दैट 70%। ठीक है, सो स्लॉट 1 में सबसे ज्यादा मैं क्या कहूंगा कि इजी क्वेश्चन जितने हैं सबको फाइंड करके उड़ा दो, बिकॉज मार्क्स तो उतना ही रखता है। सेकेंड स्लॉट विच आई से दैट इज मीडियम लेवल क्वेश्चन फॉर ऑल। ये टाइम पास आई एम नॉट डूइंग, दिस इज ऑल प्रूव स्ट्रेटेजी। तो आपको सेकेंड लेवल में चुनना है कि आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पीसीएम में पूरा फैला देना है, मतलब ऐसे पी पे जाओ मीडियम लेवल उठाओ, सी पे जाओ मीडियम लेवल उठाओ, मैथ्स पे जाओ मीडियम लेवल उठाओ। तो आप अपना टाइम ऐसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले टाइम में सबसे पहले हाफ एन आवर में मतलब आपने ऑल इजी क्वेश्चंस कर डाले। हेलो, आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग, राइट? इजी टू मीडियम वो आपको डिवाइड करना है, बिकॉज द पेपर विल कीप ऑन वेरिंग। आप जब पेपर देते हो आपको वही टाइम पे पता चल जाएगा। डोंट गो विद अ माइंडसेट कि भाई आपको सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है या फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं होने वाला है। वो टाइम पे आपको ऑन स्पॉट स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप पीसीएम में से चुन चुन के निकालो और उड़ा दो। अब यहां पर क्या हो रहा है, योर स्ट्रगल, योर माइंडसेट इज यू आर हैविंग मैक्सिमम कॉन्फिडेंस ओवर हियर बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड। यहां पर स्लॉट 1 में आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होने ही वाला है बस। ओके, यहां पर यू कीप योर कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप ओनली। थोड़े क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कीप योर कॉन्फिडेंस बूस्टेड अप। स्लॉट 3, जब आपका स्लॉट 2 खत्म हो जाता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस एक एक करके आपने जितना पूरा जोर लगा दिया, तो आप स्लॉट 3 पे जाओ, दे विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, इसमें से जो आया वो आया, वरना छोड़ देना है इसको। ओके, दैट इज द होल स्ट्रेटेजी व्हिच इज देयर। ओके, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लो सिर्फ लास्ट हाफ आवर में होने देना, या तो होने ही मत देना। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? एंड तक, टिल द एंड, you have to keep your confidence boosted। ये स्ट्रैटेजी है, ये जो लिखा है ना मैंने, ये एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी ये है, बस एक लाइन में ये चीज है। ओके, कुछ लोग एडवांस का नाम ही सुन के भाग जाते हैं, एडवांस कौन? ओके, आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्टेड रखना है, अंदर से खींच खींच के क्वेश्चन निकालना है, और आपको अपने आप को लो नहीं महसूस करने देना है। क्योंकि क्या होगा, एग्जामिनेशन ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा कि आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, आपने सपोज केमिस्ट्री से चालू किया, कुछ लोग बोलते हैं हमारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपने केमिस्ट्री से चालू किया, 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, गया आप काम से, मेरा रैंक गया, कोई मतलब नहीं है, 2 इयर्स आए वेस्टेड, वो सब दिमाग में आपको नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाएगी। तो एक बार ऐसे हो रहा है आपके साथ, आपको 2 से 3 मिनट से 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं आया तो छोड़ देना। इट इज अ नो स्ट्रगल एग्जामिनेशन। Okay, experts tell you that it is a no struggle examination. You have to keep yourself boosted again and again, I'm telling you. और बाकी जो उसके नीचे के जो कानून है वो सब उसके बाद में बेस्ड है। इट इज नॉट, एक मिनट, हाँ, कैन यू ऑल हियर मी? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ओके फाइन। सो सॉरी, अब ये चीज है। अब और आगे थोड़ा ज्ञान आई विल गिव इट टू यू, बस लास्ट है, फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रखेंगे, फिर खत्म करेंगे। 2 साल से जेई एडवांस का जो एग्जाम देखा गया है, मतलब 2020, और कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2021 में भी यही टाइप का पेपर आने वाला है। अब ध्यान देना,
ओके सो क्योंकि कंडीशंस सेम है, देखिए जैसे जेई मेन का भी पेपर जनरली इजी आया था, कुछ कुछ लेवल्स कुछ स्लॉट्स टफ थे मगर जनरली पेपर इजी था। तो वही प्रिडिक्शन लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जेई एडवांस का पेपर इजी आएगा, इजी नहीं था, लास्ट ईयर भी इजी नहीं आया था पैंडेमिक की वजह से, ये साल भी इजी नहीं आने वाला है जेई एडवांस का पेपर, मगर इट विल बी बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन कैटेगरी वाइज। तो आपको सिलेक्शन अच्छी रखना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इट विल बी कैलकुलेशन बेस्ड and based on your manipulation techniques. Okay, आप कितना मैनिपुलेट कर पाते हो, कैसे फटाफट सोच पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कैलकुलेशन कर पाते हो। जनरली लास्ट ईयर जो पेपर था इट वाज मोरली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत फास्ट कर पाते थे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। अगर आप देखिए 2020 का जो पेपर था, मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थे उसमें। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, मैनिपुलेशन फास्ट है, ओके, एलिमिनेशन फास्ट है, तो आप ये पेपर आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड, इट विल बी बेस्ड ऑन योर रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग हैबिट्स। अभी इसमें क्या होता है कि लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो लास्ट लाइन भूल जाते हैं, या लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन भूल जाते हैं। ये कब आता है? रीडिंग हैबिट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, दे आर बेस्ड ऑन मोर देन वन करेक्ट, या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड में। हेलो, कॉम्प्रिहेंशन में आएगा, बराबर है ना? उसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जब मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हो ना, ए बी सी डी, तो इसको 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 ट्रीट एवरीवन क्वेश्चन एज ओके अ डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब डोंट यूज एलिमिनेशन, डोंट यूज एलिमिनेशन बिकॉज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस है। तो इसको आपको एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि रिलेटेड होगा, ए विल बी रिलेटेड टू बी, बी विल बी रिलेटेड टू डी, ऐसे हुआ है, हम लोगों ने डीसी पढ़ने में देखा है बहुत सारे क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि हर एक जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले आप पूरा पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ो। मतलब 4 टाइम मत पढ़ो, हर एक क्वेश्चन के पहले पढ़ो फटाफट। पहली बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, मतलब हर एक को एक एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है, हर एक को एक एक क्वेश्चन की तरह आपको ट्रीट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में, बिकॉज आजकल मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन बहुत ज्यादा देखा गया। एंड थर्ड इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत कूल जाना है, अगर आप थोड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज हो गया या कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं उस पे। अच्छा, एक और एक बात, जो चीज आपने 2 साल किया है ना, चाहे आपने कोई बुक से पढ़ा है या कोई टीचर से पढ़ा है या किससे भी, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा। जो भी बुक आपने सॉल्व किया, मैथमेटिक्स में सपोज आपने सेंगेज सॉल्व किया, तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। बाहर वाले आपको कुछ भी कहेंगे कि भाई ये बुक से करो, ऐसे करो, इधर से करो, इरोडॉव से करो, ओके। जो भी चीज ट्रस्ट रख के की जाती है ना बेटा, उसका उसका जो फल होता है, उसका जो फ्रूट होता है वो डिफरेंट रहता है। ओके, जैसे हम लोग लास्ट ईयर खुश जैन का अगर मैं एग्जांपल दूंगा, ही वाज वेरी, पूरी चीज ट्रस्ट, उसको जो बोलते थे वैसे करता था। सर ऐसा करूँ, सर ऐसा नहीं करूँ, तो उसका देखो बाकी सब लोग क्या हो गया, बाकी एक एक स्टूडेंट मुझे याद है कि भाई यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हो गया, ये वीडियो देखना शुरू कर दिया, वो पूरा जिंदगी उसमें ही लग गया, फिर उसका ना रैंक आया ना कुछ आया, खराब हो गया उसका पूरा। तो देयर आर इनफाइनाइट सोर्सेज वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। You need to trust the book what you are doing, and you need to trust the teacher, you need to trust the system in much. Okay, और लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रूव करके बताया ही, उसके पहले भी ओके बहुत सारे लोग गए हैं, तो दैट इज देयर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज को कंपेयर करो कि भाई ये लेवल है, हमको ये लेवल करना है, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर से इजी आता है। अच्छा, अगर 2-3 चैप्टर आप छोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ब्लॉक 3 के। ब्लॉक 1 करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। आई कम टू द लास्ट नोट। फर्स्ट, डोंट गेट ट्रैप्ड इन क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट है। आपका ईगो बीच में नहीं लाना है। अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को बराबर से नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप नई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो क्वेश्चन को। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है इंटरप्रिटेशन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और एक होता है न्यू सिचुएशन। अगर आपने ये सिचुएशन देखी नहीं है, मगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा बट सिचुएशन आपने देखी नहीं पाई। और जनरली लॉन्ग आंसर को सब लोग हैंडल कर पाते हैं, कोई हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ही है। इंटरप्रिटेशन भी आप लोग कर पाएंगे। नई सिचुएशन देंगे तो लोग है ना इधर मार खा जाते हैं। बट ठीक है, आपको वो चीज नहीं है तो आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज देखो, कौन से सिचुएशन है, कौन सा आपका इंटरप्रिटेशन हैबिट डेवलप करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 100% इज नॉट नेसेसरी। मैं फिर से कह रहा हूं, 50%, 55% में आपको आईआईटी में सीट मिल जाएगा, 60% में अंडर 2000 में आ जाएगी आप। ओके, सो 100% इज नॉट नेसेसरी। आपको अपने ईगो को साइड में रखना है, ट्रैप नहीं होना है क्वेश्चंस में। गो विथ फुल एनर्जी। जब भी आप पेपर देते हो फुल एनर्जी के साथ में दो। अच्छा, ऐसे भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा, मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो हफ्ते में आपने रोज बरोज मॉक टेस्ट कर लिए तो वो गलत है, वो आपका एनर्जी को ड्रेन कर लेगा। हफ्ते में या तो 1 या तो 2 टेस्ट दो। हफ्ते में या तो 1 टेस्ट दो या तो 2 टेस्ट दो, ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। रिचार्ज योर ब्रेन फुल्ली, 100% इज नॉट नेसेसरी। ओके, ये ध्यान रखो बेटा। और मुझे कुछ बोलने की और जरूरत नहीं है। मैंने पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी भी बता दिया, नो स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल फॉर माय साइड। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो पूरा मैंने आपको एडवांस लेवल पे बता दिया। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस है इसमें तो मैं आपको बताना ठीक समझूंगा, अगर मुझे आएगा तो। ठीक है, तो एनीवन हैज सम क्वेश्चंस और एनीथिंग, सो वी कैन हेल्प यू ऑल आउट, अदरवाइज यू ऑल आर स्मार्ट इनफ। जी मेन जिसने क्रैक किया वो स्मार्ट ही रहेगा यार। चलो बाबा, हेलो। Sir, हाँ बेटा, आर्यन। so for me, like for physics, I would say the derivation questions, like where you have to derive, is giving a lot of trouble. So what I should do for that? Derivations related to advanced or related to what are you speaking about? So like say advanced questions are not like formula based. You have to derive, right? A few Correct, like few chapters. correct, correct, So correct. like those category questions is giving a lot of trouble to me. See what is there, I'll give you a best suggestion for this thing. Whenever you practice that kind of sum na, Aryan अपना ऑडियो ऑन रखो बेटा। Yeah, yes, I'm there. हाँ आर्यन, जब भी वो टाइप के सम्स आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसको 2 से 3 टाइम रिपीट करो 2-2 दिन में। एक बार आपको डेरिवेशन दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको कोई भी वो कैटेगरी का वो लेवल का सम आएगा तो आपको डेरिवेशन करने में आसानी होगी। हमेशा पहली टाइम डेराइव करना बहुत मुश्किल होता है, यू विल फॉरगेट। मगर आपने वही सम को 2-2 दिन 3-3 दिन से रिपीट किया ना बेटा, तो वो डेरिवेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कोई भी सिचुएशन उसमें आता है नया टाइप का सिचुएशन, तो आप डेरिवेशन कर पाएंगे। यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yeah, sir. Yeah, sir. मेन Like कॉन्सेप्ट इज रिपीटेशन। द मेन, जैसे आप एचएससी पढ़ते हो, हेलो, जैसे आप एचएससी yeah, पढ़ते हो, yeah, sir. में क्या होता है कि एक बार पढ़ेंगे तो डेरिवेशन याद नहीं रहेगा। मैं आपको बोलूं वी आर ओमेगा डेराइव करके बताओ, तो आप एक टाइम पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। कम से कम 2 से 3 टाइम आपको वी इज आर ओमेगा लिखना पड़ेगा, तभी आपको डेरिवेशन याद हो जाएगा। तो दिस इज द होल स्ट्रेटेजी ऑफ डेरिवेशन। देयर इज नो नथिंग अदर देन दिस। उधर बैठ के आप डेराइव नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। उधर जाके सिर्फ आपको एमिट करके आना है हमारे लैंग्वेज में। ओके, हेलो, गेटिंग ना? Yeah, yeah, sir. Yeah, sir. You need to repeat it. Any other questions, Arjun, Divya, Tish?
नो सर। क्रिश, हृदय, बेटा मैं क्या कहूंगा, एस्पिरेशन को थोड़ा हाई रखो और यार दे दो। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हार्ड है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट आप लोग एक काम करो, मैथ्स के टीचर को भी, राम सर को भी पकड़ो, और मनोज सर, सचिन सर को भी पकड़ो और पूछ लो, विपुल सर को भी पकड़ो और पूछ लो कि भाई कौन से चैप्टर्स हमको करना है। जैसे मैंने आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 बताया ना, वैसे वो भी आपको ब्लॉक्स बताएंगे। तो आप मिनिमम तो इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो सलाहियत है ही आप लोगों में ना यार, इसलिए आप लोगों ने क्रैक भी किया। मैं आपको सब करने नहीं बोल रहा, और वो ही मिनिमम से लोग क्रैक कर चुके हैं। ओके, माइंडसेट आपका सही रखो और ओके रेस में चले जाओ यार। ओके, बहुत सारे लोग रेस से इसलिए बाहर हो जाते हैं कि एडवांस है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, साइकोलॉजिकल थिंग। ठीक है, और किसको क्वेश्चंस है? अर्जुन, दिव्या, हृदय, शौर्य नहीं है। हाँ बेटा, tell me. Sir, like now, when can you expect like the exam to happen? Like since the May attempt also got postponed. अगस्त में होगा, अगस्त के एंड में या उसके बाद में भी जाएगा बेटा। एडवांस की बात कर रहे हो ना आप? Yeah, sir. Like and for J mains also like. ये मेंस का अभी कुछ पता नहीं है, आई डोंट नो, बट ये ज्यादातर लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर अक्टूबर में था ना, अक्टूबर से ज्यादा नहीं खींच सकते हैं लोग। दे कैन नॉट पुल बियॉन्ड दिस थिंग, आई डोंट थिंक सो। So like if we could get like आपको पता हो तो like rough image पता चले तो like वैसे we can plan that. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली फॉर सितंबर के लिए, तो प्लान ही कर सकते हो। हेलो, Yeah, sir. सितंबर के लिए। और देखो मैं आपको है ना, एक अच्छी चीज मुझे याद आई है, टाइम टेबल बनाने का आइडिया। एक रफ टाइम टेबल आपने बनाया, सपोज आई स्टडी 3 आवर्स फिजिक्स, कल सुबह उठा मैं 7 बजे, फिर 3 आवर्स मैंने फिजिक्स पढ़ा, 3 आवर्स मैंने केमिस्ट्री पढ़ा बीच में 2 से 5, और 3 आवर्स में मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। बीच में मैंने टाइम पास किया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, ये किया, मम्मी से बात किया, खाना खाया, मूवी देखा, ये सब चीज दिया। दूसरे दिन आप वही टाइम टेबल को फिर से एनालाइज करो कि मैंने इधर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, इस स्लॉट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप एक रफ टाइम टेबल बनाओ और दूसरे दिन वो टाइम टेबल को अपने हिसाब से कंपेयर करो कि जहां पर आपने गलतियां की है। एवरी डे फ्रेश टाइम टेबल बनाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। जनरली एवरीवन सेज दैट ओनली, बट मेरा एक्सपीरियंस ये मानता है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसी में अपने आप को ढाल लो, और जो गलतियां है ना उसको निकाल के बाहर करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टेलिंग? हेलो, हाँ Yes, sir. हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपने कंफर्ट जोन में भी रह गए और आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। एवरीडे का सेम सेम टाइम टेबल, जैसे आप खाना खाने का टाइम कैसे रहता है भाई, 1 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, तो वैसे ही आपको वही वही हैबिट एक बना लेनी है। ओके, अपने आप को फोर्स मत करो, उसको एक हैबिट की तरह बना लो, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, ताकि आपकी पढ़ाई भी एक हैबिट बन जाए। ये चीज है, और आप लोग खुद ही स्मार्ट हो यार। ओके, और मुझे कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कुछ भी हेल्प रहेगा तो आई एम ऑलवेज देयर। PYQ ज्यादा करो, DC पांडे करो, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। Sir. हाँ बेटा, So one more thing, so right now we shouldn't even do HSC, so we should keep the focus on the entrance only. ऑन द एंट्रेंस ओनली, यस, ऑन द एंट्रेंस ओनली। बस अभी HSC का कोई वो नहीं है, अभी एंट्रेंस पढ़ते रहो, एंट्रेंस पढ़ते रहो बस। Okay, so like we'll get a rough estimate before the exam. Like उसमें थोड़ा बहुत तो preparation करना पड़ेगा ना, like if they keep the exam. हाँ, प्रिपरेशन सब हो जाएगा। ओके, एडवांस को रखो एंड टेस्ट दिया करो, लास्ट ईयर के पेपर्स प्रैक्टिस किया करो, और देखते हैं, टाइम है आप लोग के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग है ना रेस से बाहर हो जाएंगे, बोलेंगे यार इतना टाइम है, वी आर गेटिंग डीमोटिवेटेड। अगर आपने आपने आपको मोटिवेटेड रखा तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे आपको मालूम ही नहीं है। डीमोटिवेट हो गया तो सबकी तरह आप भी रेस से बाहर हो जाएंगे। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। 2-4 महीना है और आपने इतना पूरा जिंदगी दिया है, 2-2.5 साल आपने दिया है, तो आप एंड में आके अपने आप को डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो? आपने अपने प्रेशियस 2 साल दिए हैं यार टीनेज के, जहां पर आप मस्ती कर सकते थे, आप घूम फिर सकते थे, आप पूरा मजा कर सकते थे, बट आपने अपने प्रेशियस 2 साल दिए, तो उसको क्यों वो 2-3 महीने की वजह से वेस्ट करना चाह रहे हो? थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लो ना यार, थोड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़े लास्ट ईयर के पेपर अटेम्प्ट करो कि ये पेपर को मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करता तो मेरे इतने मार्क्स आते। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
हेलो, मतलब Yes, आप sir. क्या करो, 2020 या 2019 का पेपर देखो, 2013 से 2020 के पेपर एनालिसिस करना चाहिए। कि सपोज मैं 2019 का पेपर लूं और मैं उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करूं, फिर से देखूं मैं दूसरे या तीसरे दिन, मैं यार ये अटेम्प्ट करता था तो इतने मार्क्स आते थे, इतना अटेम्प्ट करता था तो ऐसे मार्क्स आते थे। मतलब वो पेपर को है ना थोड़ा एनालिसिस करो अलग अलग एंगल से, कि आप मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम हार्डवर्क में डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, कुछ भी रहेगा तो कॉल कर देना, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय एंड थैंक यू। चलो, Bye, sir. Thank you. Bye, बाय। sir. Thank Bye, sir. एंड Thank you. सॉरी इफ आई हैव शॉर्टेड टू एनीवन और एनीथिंग, मेरे से गलती हो गई रहेगी तो सॉरी। एनीथिंग, आई ऑलवेज टेल सॉरी टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बेटा। चलो बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय, टेक केयर, बाय, Bye, sir. बाय, बाय।